gracious, the merciful, respected students, friend, follower. Today we are going to discuss very crucial topic. This topic will soothe, comfort the people. They are feeling discomfort, they are in hardship, they are in agony, they are in torture, and they feel that God is putting us in difficult situation, and why we are for this torture, agonies and suffering. Whenever luck is going to destroy you, he is in fact going to make you the best version of this universe. Life gives you lesson through experience. So whatever happens with you, in fact this experience is going to give you very good experience. It's going to refine you, mold you and make you best of this universe. So let's discuss. One of the American writer, the name of this writer is Walt Whitman. Walt Whitman said, whenever you want something, life is not going to give you what you want. Life give you what you need. It makes you pass through in such kind of roots, such kind of suffering, agonies, torture, depressions, anxieties. It is going to give you reformation. It's going to reform you. Whenever you are in suffering, you are in agony, you are in torture, you will make best use of your capability and ability. So Walt Whitman said, life does not give you what you want, rather it gives you what you need. लाइफ आपको वो चीज नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वो देती है जिसकी आपको जरूरत होती है. आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं, वाल्ट विटमैन जैसे कहता है कि ऐसे लोग आते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको डिप्रेस करते हैं, जो आपको एंजाइटी, सफरिंग में मुब्तला करके आपके अंदर से बेस्ट जो है वो निकालते हैं. जब आप डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, तो आप अपनी कैपेबिलिटी का बेस्ट यूज करते हैं. वैसे तो इंसान नहीं कर रहा होता. तो जब इंसान के एग्जाम, जब किसी भी स्टूडेंट के एग्जाम नजदीक आते हैं तो वो ज्यादा पढ़ लेता है ना, वो साल में नहीं पढ़ता, वो मंथ में पढ़ लेता है. इट मीन कि जब आपके ऊपर कोई टेस्ट आता है, द टेस्ट और क्रूसिबल और टेस्ट और सीवियर टेस्ट इज गोना टीच यू सम लेसन. बेकन सेड, Sir Francis Bacon, he said, whenever you crush flower, it gives you more fragrance. जब आप किसी फ्लावर को क्रश करते हैं तो वो आपको और फ्रेगरेंस देता है. जैसे मैंने पहले बताया, जिस जमीन के ऊपर हल नहीं चला सकते आप, वो कभी अनाज नहीं देती. For that you have to bend yourself. If you want to get something, you have to bend yourself. You have to suffer. You have to pass through suffering, torture, anxiety, and that will make you best version of this universe. So Walt Whitman के अकॉर्डिंग अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो ये सफरिंग जो है ये पार्ट है. जैसे विलियम ब्लेक ने कहा था, विलियम ब्लेक सेड दैट डिप्रेशन, हैप्पीनेस एंड वूर, कहता है दे आर द क्लॉथ ऑफ ह्यूमन सोल. हैप्पीनेस और डिप्रेशन जो है, परेशानियां और खुशियां साथ साथ चलती हैं. ये इंसान की पर्सनैलिटी का या उसकी सोल का ये क्लॉथ है, उसके बॉडी का क्लॉथ है. और कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि मैं बगैर परेशानी के ही बस चलता रहूं, मेरी लाइफ स्मूथली चलती रहे, कंफर्ट ही रहे. लेकिन उसमें परेशानियां आती हैं ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज कौन कौन सी है, एबिलिटी कौन कौन सी है. अगर आप सारी जिंदगी खुशी रहें तो कभी आप लेसन सीख ना सकें, आप कभी जिंदगी में कुछ लर्न ना करें, कभी एक्सपीरियंस ना हो. इसीलिए हमारी लाइफ में परेशानियां आती हैं. पीपल कम इन योर लाइफ to just dismantle you, to destroy you, to suffer you, to make you suffer, or they are gonna hurt you, but they in fact just putting you to right direction. आपको वो सफर करेंगे, टॉर्चर करेंगे, आपकी लाइफ को वो बनाएंगे जिसके लिए आप बने हैं. अल्टीमेटली आपको लाइफ वहां ले जाएगी. तो अगर जिंदगी के अंदर परेशानियां आ रही हैं
तो you are getting from this suffering. First of all, when you get suffer or you depress, you are in anxiety or circumstances or situation, or some people they are causing you disturbance, they are in fact making you to be perfect. They are making you in fact strong. You will get experience first of all. When you are in trouble, you will cope with the situation. जब आप ट्रबल में होंगे, किसी परेशानी में होंगे, तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं इसमें हूँ तो मैंने इसके साथ लड़ना कैसे है. आप लड़ाई के जरिए जब उसके साथ आप कॉम्बैट होगा उस परेशानी या उस डिप्रेशन, उस सफरिंग के साथ, तो सबसे पहले तो आप एक्सपीरियंस सीखेंगे. The second thing is that you will get self reliance, self satisfaction. आपको अपने ऊपर इन्हिसार करेंगे, ना कि किसी और पे डिपेंड करेंगे. एक तो आप सेल्फ जो है एनालिसिस करते हैं, सेल्फ रिलायंस करते हैं, सेल्फ डिपेंडेंस हो जाते हैं, रादर देन किसी और के ऊपर आप डिपेंडेंस करें. आपकी जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस है वो खत्म होती है जब आपके ऊपर कोई ट्रबल आती है, परेशानी आती है. ये आपको इस काबिल बनाता है कि आप खुद किसी परेशानी के साथ डील करें. आपका इंट्यूटिव जो है वो ज्यादा वर्क करता है. आपका इंट्यूशन का जो नॉलेज है आप उसको यूज करके उसके साथ कॉम्बैट करके उसके साथ लड़ के उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करते हैं. जैसे सर फ्रांसिस बेकन सेड, सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि अगर परेशानी है, अगर एडवर्सिटी है, तो उसके बाद तो खुशहाली आएगी. बट खुशहाली हमेशा, प्रॉस्पेरिटी हमेशा किसकी तरफ लेके जाती है? एडवर्सिटी की तरफ. क्योंकि खुशहाली में जब इंसान के पास ज्यादा पैसा होता है तो वो ज्यादा अय्याश बनता है, वो ज्यादा ताशियात की जो गुड्स हैं, जो ताशियात की चीजें हैं वो खरीदता है, लक्ष्रियस चीज़ों से ज़्यादा इंजॉय करता है. और ऑलमोस्ट ये जो प्रॉस्पेरिटी है बंदे को एडवर्सिटी की तरफ ले जाती है. लेकिन एडवर्सिटी हो तो बंदा तगोदो करके, कोशिश करके, एफर्ट करके किसकी तरफ जाता है? खुशहाली की तरफ जाता है. सो फ्रांसिस बेकन सेड एडवर्सिटी लीड्स टू प्रॉस्पेरिटी, बट प्रॉस्पेरिटी मस्ट ब्रिंग्स यू टुवर्ड एडवर्सिटी. सो टुडेज लेसन इज, जैसे वॉल्ट व्हिटमैन ने कहा कि आपको ज़िंदगी वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, ज़िंदगी आपको वो देती है जिसकी आपको ज़रूरत होती है. ज़िंदगी आपकी लाइफ में ऐसे लोग लेके आती है जो आपको हर्ट करते हैं, जो आपको टॉर्चर करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको आगे पकड़ के आपका बाजू या तो आगे ले जाते हैं या धकेलते हैं या छोड़ जाते हैं. फिर आप ज़िंदगी में चलना सीखते हैं. एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ. It gives you satisfaction. It also improves your intuitive knowledge. It improves your imagination. You start thinking that this world is not a child play. This is not a bed of roses. Rather, you have to work yourself. You have to be self-reliant. You have to learn self-reliance. You have to be self-dependent rather than depending on other. तो ये चीज़ें आपको लर्न करने के लिए, ये आज मैंने एक बड़े ग्रेट पोइट का आपको ये एक उसका कोटेशन जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है. वॉल्ट व्हिटमैन अमेरिकन पोइट हैं और ये एक डेमोक्रेटिक पोइट थे, अमेरिकन पोइट थे. और इसके साथ साथ ये जो वॉल्ट व्हिटमैन है, इन्होंने सिविल वार अमेरिका की देखी है. अमेरिका के अंदर पैदा हुए हैं, न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुए हैं. न्यू जर्सी एक प्लेस है अमेरिका की, वहाँ इनकी डेथ हुई है. बड़ा सूफी किस्म का मिस्टिक पोइट था, बड़ा रोमांटिक किस्म का पोइट था, इमेजिनेटिव काइंड ऑफ पोइट था. इसने शेक्सपियर को, वर्ड्सवर्थ को, कॉलरिज को और दीगर जो बड़े बड़े पोइट्स थे उनको पढ़ रखा था. और लिखने में ऐसे लगता है, इसकी पोइट्री देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे इसने वर्ड्सवर्थ को बड़ा डीपली स्टडी किया हुआ है. और कहते हैं कि इसका ताल्लुक एक क्वैकर कबीला है, ये सेक्ट होता है क्वैकर्स ऐसे क्रिश्चियंस हैं जो झूम झूम के जिक्र करते हैं गॉड का, और गॉड का इस पे बिलीव करते हैं कि इंसान की सोल जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है गॉड के साथ. तो क्वैकर्स जो सेक्ट है उससे ताल्लुक़ रखते थे. वॉल्ट व्हिटमैन, अ वेरी गुड पोएट, बिलोंग्स टू अमेरिका.